अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है जी सबको? यस सर। चलो शुरू करते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic for the discussion is the removable appliances. Now in the orthodontic, basically जो हमने definition में discuss किया था कि orthodontic deals with the skeletal problem as well as with the dental problem. So the appliances are divided accordingly. Some appliances they are used for the correction of the skeletal problem, and some appliances they are used for the correction of the dental problem. Both appliances can be removable or the fixed. Means the removable appliance can be used for the movement of the teeth, as well as the removable appliance can also be used for the correction of the skeletal discrepancy, जो jaw related problems होते हैं, as well as the fixed appliances can also be used for the correction of the dentition कि dental अगर movement करानी है, and fixed appliances are can also be used for the correction of the skeletal problem. ये सिंपल इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने आज ये चूज किया ताकि इसको कंप्लीट करके फिर जो आगे एक दो टॉपिक्स आएंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे अंडरस्टैंड करने में, मतलब ताकि ये हो जाए तो फिर नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह वो हम शुरू करेंगे। ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस क्या होते हैं? अप्लायंसेस बाय मींस ऑफ व्हिच प्रेशर कैन बी अप्लाइड टू द डेंटिशन और विच चेंज द न्यूरोमस्कुलर एनवायरनमेंट ऑफ द ओरल कैविटी। मींस इफ they apply the pressure on the teeth or they change the neuromuscular environment. अगर force apply करेंगे on the dentition means they will cause the dental movement. If they will change the neuromuscular environment means they will correct the skeletal related discrepancies. Orthodontic appliances generally they are classified into the fixed appliances, removable appliances, and then the functional appliances.
यहाँ पे functional appliance, fixed appliances वो होते हैं which are fixed on the dentition. Removable appliances are those which are not fixed and can be removed at any time by even the patient or by the orthodontist. And the functional appliances basically are those appliances which change the neuromuscular environment and correct the skeletal discrepancies. According to the mode of action, the appliances are divided into active appliance and the passive appliance. Active appliance क्या होते हैं? They exert the pressure on the alveolar bone via teeth in a predetermined direction by means of those springs, screws or elastics. An active appliance can be removable, fixed or the functional. ऐसा अप्लायंस जो कि टीथ पे प्रेशर अप्लाई करे और टूथ की अगर मूवमेंट हो तो वो बेसिकली एक्टिव अप्लायंस होते हैं. पैसिव अप्लायंसेस क्या होते हैं? दे आर नो एक्टिव कंपोनेंट. They maintain the integrity of the arches or redirect the natural forces to bring about the orofacial changes. Passive appliance can also be removable, fixed or the functional. अब सपोज करें एक रिमूवेबल अप्लायंस है. अगर रिमूवेबल अप्लायंस को अगर हम पेशेंट को देते हैं रिमूवेबल अप्लायंस यूज करने के लिए, वो अप्लायंस विद इन द आर्च रिटेन कैसे करेगा? इट विल रिटेन विद द हेल्प ऑफ द पैसिव अप्लायंस. सपोज हम फिक्स्ड अप्लायंसेस यूज करते हैं, जो हम ब्रेसेस यूज करते हैं ऑन द डेंटिशियंस, वो जो बेसिकली जो ब्रेसेस होते हैं दे आर द पैसिव कंपोनेंट. बिकॉज अगर आप सिर्फ और सिर्फ ब्रेसेस लगा दें तो दे विल नॉट कॉज एनी डेंटल मूवमेंट until and unless कि हम उसमें वायर इंगेज करें, कोई इलास्टिक इंगेज करें, कोई हम उसमें एक्टिव कंपोनेंट इंगेज करें. सो जो भी ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस होगा उसमें ये सारी चीजें होंगी. एक्टिव कंपोनेंट भी होगा, पैसिव कंपोनेंट भी होगा. मतलब एक्टिव कंपोनेंट वो होगा जो कि प्रेशर अप्लायंस करेगा. पैसिव अप्लायंस या पैसिव कंपोनेंट वो होगा जो बेसिकली उस अप्लायंस को रिटेन करेगा, नंबर 1. और पैसिव अप्लायंस वो भी हो सकता है कि जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूरोमस्कुलर जो एनवायरनमेंट होगी उसको चेंज करे. Removable appliance, an appliance which can be removed by the patient for cleaning or by the orthodontist for adjustment or the activation. तो मैंने पहले कहा कि removable वो appliance जो कि remove हो सकता है at any time, even by the patient or by the orthodontist for the activation purpose. Now the removable appliance can be active as well as the passive. अब सपोज करें एक्टिव क्या होगा कि हम एक अप्लायंस दे रहे हैं, देयर आर माइल्ड स्पेसेस इन द आर्चेस, इन द टीथ में माइल्ड स्पेसेस हैं, हम रिमूवेबल अप्लायंस देंगे, वी विल अप्लाई द प्रेशर विद द रिमूवेबल अप्लायंस एंड वहां पर वो डेंटल जो स्पेसेस होंगे वो क्लोज होगा, तो दैट इज एन एक्टिव कंपोनेंट. दूसरा क्या होता है कि आफ्टर दी आप में से काफी लोगों की जो है वो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अगर हुई भी होगी, तो क्या होता है कि जब हम फिक्स्ड अप्लायंसेस रिमूव करते हैं तो आफ्टर द फिक्स्ड अप्लायंसेस एक रिटेंटिव अप्लायंस दिया जाता है, मतलब ताकि जो हमने चेंजेस किए हैं विद द फिक्स्ड अप्लायंस उसको मेंटेन रख सकें अपना. ठीक है, तो वो जो अप्लायंस होता है वो बेसिकली होता रिमूवेबल अप्लायंस है, बट पैसिव अप्लायंस होगा. पैसिव अप्लायंस इट विल नॉट कॉज any change, it will not apply any pressure, it will not cause any change in the dentition. ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो पोजीशन होगी उस पोजीशन को मेंटेन रखेगा, मतलब डेंटिशन की जो भी पोजीशन हो. Functions of the removable appliance. Removable appliance can be used as an active appliance, means for the movement of the teeth. It is used for the retention purpose. जैसे मैंने कहा ना कि after the fixed appliances जो हम removable appliance patient को दिया जाता है, that is for the retention purpose, ताकि जो भी changes हमने fixed appliances के साथ किए उसको हम maintain रख सकें, retain कर सकें. Removable appliances can also be used for the anchorage reinforcement. अब ये anchorage हम आगे डिस्कस करेंगे. बेसिकली anchorage क्या होता है? Resistance to the displacement. अब सपोज करें कि फिक्स्ड अप्लायंसेस में हम एंटीरियर टीथ को पोस्टीरियरली मूव कर रहे हैं, तो पोस्टीरियरली मूव कैसे करेंगे? बाय प्रेशर, और वो प्रेशर किसी जगह से होल्ड होगा ना, तो यूजुअली पोस्टीरियर टीथ से हम उसको होल्ड करते हैं और पोस्टीरियर टीथ को स्टेबल करके हम एंटीरियर टीथ को पोस्टीरियरली मूव करते हैं. इन सर्टेन कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होते हैं जिसमें मल्टीपल टीथ मिसिंग हो या जो एंकरेज की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा हो,
तो ऐसी कंडीशन में रिमूवेबल अप्लायंस कैन बी यूज्ड फॉर द एनकरेज रीइंफोर्समेंट. रिमूवेबल अप्लायंस कैन आल्सो बी यूज्ड एज एन बाइट प्लेन. ये हम पढ़ते हैं ना ओवर बाइट कि एंटीरियर ओपन बाइट है, नॉर्मल ओवर बाइट है और डीप बाइट है. इन द ग्रोइंग पेशेंट्स, इफ द पेशेंट हैज एन एंटीरियर डीप बाइट, जो ओवर बाइट है वो ज्यादा है, लेकिन एक्सेसिव ओवर बाइट है. एक्सेसिव ओवर बाइट कैन बी करेक्टेड बाय द एंटीरियर बाइट प्लेन, जो कि एक सिंपल रिमूवेबल अप्लायंस होता है. इफ द पेशेंट हैज एन ओपन बाइट, so we can use the posterior bite plane for the correction of the open bite. So bite planes can be incorporated in the removable appliance. The removable appliance can also be used for the as an habit correcting. Suppose patient has an habit of the thumb sucking or the tongue thrusting. So initially हम क्या करते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं ताकि वो उसकी हैबिट खत्म हो जाए. इवन आफ्टर दैट अगर नहीं होती तो देन फर्स्ट चॉइस कि आप उसको रिमूवेबल अप्लायंस दे दें. उसके बाद भी अगर पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता तो देन वी कैन मूव फॉर द फिक्स्ड अप्लायंसेस. सो रिमूवेबल अप्लायंस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द एज एन हैबिट करेक्टिंग अप्लायंस. स्पेस मेंटेनर्स कल हमने डिस्कस किया था कि पार्शियल डेंचर एज एन स्पेस मेंटेनर. इफ देयर आर मल्टीपल मिसिंग प्राइमरी टीथ तो उसमें हम क्या करते हैं कि पार्शियल डेंचर दे देते हैं एज एन स्पेस मेंटेनर. कंपोनेंट ऑफ द रिमूवेबल अप्लायंस. अब बेसिकली ये रिमूवेबल अप्लायंस आप लोगों का प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है. उसमें प्रैक्टिकल में जब आप लोग करते हैं तो ये इजी अंडरस्टैंड हो जाता है मतलब वो. लेकिन अब जब ये यूनिवर्सिटी ओपन हो प्रैक्टिकल कंपोनेंट हो तो आप ये प्रेजेंटेशन से या बुक से इजीली इसको याद कर सकते हैं. द कंपोनेंट ऑफ द रिमूवेबल अप्लायंस इज एन एक्टिव कंपोनेंट, रिटेंटिव कंपोनेंट एंड द बेस प्लेट. ये तीन पार्ट होते हैं किसी भी रिमूवेबल अप्लायंस में. एक एक्टिव कंपोनेंट होगा, एक रिटेंटिव कंपोनेंट होगा, एक बेस प्लेट होगा. ये जो एंटीरियर वायर होती है दैट इज बेसिकली एन एक्टिव कंपोनेंट. अच्छा आप सपोज करें कि हमने ये एक पेशेंट को अप्लायंस दिया है लेकिन हम इसको एक्टिव नहीं करना चाहते, तो ये जो इंटीरियर में जो वायर है हम इसको एक्टिव नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज इसको एक्टिव करना या ना करना ये हमारे हाथ में होता है. ये इसमें यहाँ पे यू लूप बना हुआ है, तो अगर यू लूप को हम कंप्रेस करेंगे तो बेसिकली ये अप्लायंस जो है, ये जो वायर है ये प्रेशर अप्लाई करेगी. अगर सपोज करें इस यू लूप को हम थोड़ा सा ओपन कर देंगे तो क्या होगा, ये वायर प्रेशर अप्लाई नहीं करेगी और ये पैसिव हो जाएगा. रिटेंटिव कंपोनेंट जो क्लैस्प्स होते हैं जो आप यूजुअली फर्स्ट ईयर में बनाते हैं, एडम्स क्लैस्प या सी क्लैस्प, तो ये जो एडम्स क्लैस्प या सी क्लैस्प जो होते हैं ये यूजुअली एज एन रिटेंटिव कंपोनेंट यूज होते हैं मतलब, ताकि अप्लायंस जो है वो आर्च के अंदर रिटेंटिव हो सके मतलब. देन एक्रेलिक बेस प्लेट. अब जो बेस प्लेट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ऑल जो कंपोनेंट्स हैं ऑफ द रिमूवेबल अप्लायंस कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन ए सिंगल पीस. अगर ये सपोज करें ना कि एक्रेलिक ये बेस प्लेट ना हो तो ये सारे अप्लायंस कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन कैसे होंगे अंदर. ये कंपोनेंट्स ज्वाइन होके एक अप्लायंस नहीं बन सकता विदाउट द एक्रेलिक बेस प्लेट. तो द एक्रेलिक बेस प्लेट का फंक्शन क्या होता है कि इट ज्वाइन ऑल द कंपोनेंट्स एंड मेक ए सिंगल अप्लायंस. Active component, the component that bring about the actual tooth movement is called the active component. Example of the active component are the labial bows, springs, expansion screws and the elastics. Mode of action of the active component, they tip the teeth around the center of resistance. Now the basic difference between the removable appliance and the fixed appliance, जो active appliances होते हैं, removable active appliances and the fixed active appliances, उसमें ये होता है that in the fixed appliances we can achieve the different types of the tooth movement. जो हमें required है, हमें if we want the tipping movement तो वो भी हम कर सकते हैं. If we want the bodily tooth movement तो वो भी हम achieve कर सकते हैं. If we want the root movement, अगर root को हम labial-lingually move करना चाह रहे हैं, जहाँ bucco-lingually medial-distally move करना चाह रहे हैं, तो with the fixed appliances it is possible to also achieve the root movement. But with the removable appliances, because the removable appliances is applying the pressure only on the coronal portion of the tooth, सिर्फ और सिर्फ crown पे pressure apply कर रहा है, तो क्या हो रहा है, सिर्फ single type of the tooth movement, that is the tipping movement, हम सिर्फ और सिर्फ वो achieve कर सकते हैं, बाकी type की movement हम इसमें achieve नहीं कर सकते हैं. दूसरा क्या होता है कि जो removable appliances होता है,
जी बेटा। सर जी सर हम सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस को जो है ना क्लिनिकली कैसे मतलब फाइंड करते हैं कि मतलब ये इसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है किसी टूथ का सर, जी मैं क्योंकि बता रहा जो एपेक्स ऑफ द टूथ है वो तो जिंजावा में एम्बेडेड होता है ना सर। हूँ, मैं बता रहा हूँ। जी सर। So the removable appliances, they will cause only a single type of the tooth movement. Now the center of resistance is located at 40% from the apex for the single rooted teeth and at trifurcation of the first molar tooth. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन किया है कि ये हम क्लिनिकली हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो एक टूथ का कहाँ पर होगा। तो डेफिनेटली अब बेसिकली पोजीशन क्या होती है आपका जो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस है, दैट इज इन बिटवीन होता है बिटवीन द क्रेस्ट ऑफ द अर्गुलर बोन एंड द एपेक्स। ठीक है, यूजुअली उसके बीच में होता है। अब डेफिनेटली हमें क्लिनिकली तो नजर नहीं आता बिकॉज द रूट इज विद इन द बोन एंड ऊपर गम्स होते हैं मतलब। तो क्या होता है कि हर रूट की जो लेंथ होती है वो यूजुअली हमें पता होता है, क्योंकि हम रेस्टोरेटिव में भी यही करते हैं। हमें पता होता है कि भाई यहाँ पर रूट जो लेंथ होती है वो दैट इज 21 mm, 18 mm, 17 mm। इसमें भी हम ये करते हैं कि सपोज जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमें पता होगा कि सपोज कि हम फोर्स मिड ऑफ द कोरोनल पोर्शन में लगा रहे हैं, दैट इज सपोज टूथ की लेंथ जो है वो कोरोनल पोर्शन की है दैट इज 10 mm, तो हम 5 मिलीमीटर पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें पता होगा कि ऊपर जो है अप्रोक्सीमेटली 10 मिलीमीटर ऊपर या 11 मिलीमीटर ऊपर इसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, बट रिमूवेबल अप्लायंसेस में वी कैन नॉट कंट्रोल द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें तो फोर्स सिर्फ एक जगह पे लग रहा है, क्राउन पे। वो फिक्स्ड अप्लायंसेस में हम क्या करते हैं, फिक्स्ड अप्लायंसेस में अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस हम अपने फोर्स को चेंज कर सकते हैं। ये जब हम फिक्स्ड अप्लायंसेस में बायोमैकेनिक्स पढ़ेंगे तो शायद उस वक्त आपको ज्यादा इजी होगा ये अंडरस्टैंड करना। मैंने इसलिए पहले कहा ना कि रिमूवेबल अप्लायंसेस में हम सिर्फ एक तरह की मूवमेंट करते हैं, दैट इज टिपिंग मूवमेंट। दूसरी कोई मूवमेंट नहीं हो सकती। मतलब वो इसलिए नहीं हो सकती कि फोर्स जो है वो एक ही लग रहा है, मतलब क्राउन पे फोर्स लग रहा है जो है वो सिंगल फोर्स की वजह से जो है वो सिर्फ उसकी जो टिपिंग होगी या रोटेशन आप कह सकते हैं वो होगी। मतलब बट विद द फिक्स्ड अप्लायंसेस हम ये जो टूथ मूवमेंट है ये हम कंट्रोल करते हैं। The retentive component, the component that holds the appliance in position, the most commonly used होते हैं that is the Adams clasp, C clasp या Southend clasp जो usually, this is an Adams clasp ये वाला, this is the C clasp या circumferential clasp भी जिसको कहते हैं। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बनाए होंगे, आप जो पार्शियल लेजर वगैरह बनाते हैं उसके लिए। and this is basically the Southend clasp। ये एक रिमूवेबल अप्लायंस है विद एन एक्रेलिक बेस प्लेट, एक्टिव कंपोनेंट एंड द रिटेंटिव कंपोनेंट। Acrylic base plate, this part carries all the component of the removable appliance. This can be complete or segmented. Auto-polymerizing acrylic resin is generally used, और आप सेल्फ क्योर एक्रेलिक भी यूज कर सकते हैं, और लाइट क्योर जो आपका हीट क्योर होता है एक्रेलिक वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है दैट इज एक्रेलिक बेस प्लेट कैन बी कंप्लीट और सेगमेंटेड। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे अगर मैं आपको पीछे बताऊं कि यहाँ पे जो हमने पढ़े हैं एक्टिव कंपोनेंट, हमने कहा कि एक्टिव कंपोनेंट में लेबल बोल्ट है, स्प्रिंग्स हैं और स्क्रूज हैं। whenever we will use screw for the tooth movement, तो उसमें आपका यूजुअली जो एक्रेलिक बेस प्लेट होगा वो सेगमेंटेड होगा। सेगमेंटेड क्यों का आगे इसकी तस्वीर भी एक आएगी आप लोगों को। ये रिमूवेबल अप्लायंसेस, दिस इज एन हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस, एक्टिव अप्लायंस, दिस इज एन रिटेंटिव अप्लायंस। नाउ अगर आप ये देखें तो यहाँ पर जो आपकी बेस प्लेट है वो बेसिकली सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड क्यों है कि यहाँ पे ये स्प्रिंग लगा हुआ है, एक्सपेंशन स्क्रू लगा हुआ है।
ये यहाँ से ये ऐसे सेगमेंटेड होगी, ये दो पार्ट सेपरेट होंगे, राइट सेपरेट होगा, लेफ्ट सेपरेट होगा। इसको हम एक्टिव कैसे करेंगे स्क्रू को, तो ये यहाँ पे स्क्रू है, तो जब इस स्क्रू को ओपन करेंगे तो दोनों पार्ट्स जो है वो अपार्ट होंगे, मतलब दोनों में डिस्टेंस बढ़ेगा। ये पार्ट इस तरफ मूव करेगा और ये जो दूसरा पार्ट है वो इस तरफ मूव करेगा। तो उससे क्या होगा कि ये प्रेशर अप्लाई करेगा ऑन द डेंटिशन और आपकी डेंटल मूवमेंट होगी। तो जब हम एक्सपेंशन अप्लायंस यूज करेंगे या एक्सपेंशन स्क्रू यूज करेंगे, इसमें आपका यूजुअली जो ये होगा आपका एक्रेलिक बेस प्लेट जो होगा वो सेगमेंटेड होगा, मतलब अदरवाइज यूजुअली जो एक्रेलिक बेस प्लेट होता है वो सिंगल पीस में होता है। Labial bow, this is the part of the removable appliance which helps in retracting or retaining the anterior teeth. Retraction purpose के लिए active होगा, retention purpose के लिए passive होगा। Parts of the labial bow is in a horizontal bow, जो anterior जो portion होता है that is in a anterior जो portion होगा that is in a horizontal bow. This is the vertical U loop and एक होती है retentive arm जो कि आपका acrylic base plate में जाके engage होती है। Uses of the labial bow is for retraction of the anterior teeth, for the retention of the teeth after the fixed braces, and can be used for attachment of auxiliary hooks or loops for engaging the elastics. जो मैंने कहा ना कि शुरू में के removable appliance can also be used for anchorage reinforcement. अगर anchorage reinforcement के लिए होगा तो elastic वगैरह engage करने के लिए हम इसको use कर सकते हैं। Types of the labial bow is short labial bow, long labial bow, Roberts retractor and reverse loop labial bow. अच्छा बेसिकली जो इसके टाइप्स होते हैं they are according to the length of the wire. जो labial bow में वायर यूज होती है, horizontal जो bow होती है, according to the length of the wire they are classified into the short labial bow, long labial bow and Roberts retractor. Short labial bow क्या होती है? For retraction of anterior teeth and it is made of 0.6 mm stainless steel wire. For retention purpose, a 0.7 mm wire is used. Then Roberts retractor, it is constructed of 0.5 mm stainless steel wire. Parts of the Roberts retractor are the horizontal bow, जो again ये anterior में होती है. Then vertical arm, this is the vertical arm. This is the coil and then the retentive arm. So now the question arises basically what is the difference between Roberts retractor and the labial bow. The aim is that suppose if there is any space is too much in the arch for, अगर space बहुत ज़्यादा है मतलब arch में, तो वो close करने के लिए we can use the Roberts retractor. Why? Because Roberts retractor में जो wire की thickness है वो भी कम है, जो wire की लेंथ है वो ज्यादा है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली अगर देखें 0.5 mm की थिकनेस यूज हो रही है एंड लेंथ वायर की इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन लेंथ ऑफ द वायर एंड डिक्रीजिंग इन द डायमीटर ऑफ द वायर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जो वायर होगी वो ज्यादा होगी। फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होने की वजह से जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा, वो कंटिन्यूअस फोर्स अप्लाई करेगा, मूवमेंट ज्यादा होगी मतलब इसमें। सो जहाँ पे ज्यादा स्पेसेस हो, ज्यादा हमें मूवमेंट चाहिए, तो वी कैन यूज द रॉबर्ट्स रिट्रैक्टर। बट डेफिनेटली जो रॉबर्ट्स रिट्रैक्टर होता है ये पेशेंट के लिए थोड़ा सा इरिटेटिंग डिस्कम्फर्ट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लेबियल बुक, क्योंकि ये जो इसकी वर्टिकल आर्म होती है ये जाके ऊपर सर्कस में वहां टच होती है। एडवांटेज कैन बी यूज्ड फॉर सिवियर प्रोट्रूजन ऑफ द टीथ and range of action is longer. Drawback can not be used for the lower arch and uncomfortable to the patient. Okay. Springs, finger spring, it is constructed of 0.5 mm stainless steel wire for the incisors and 0.6 mm steel wire for the canine in the premolar. अच्छा, जो labial bows थी, they were used for the labiolingual movement of the teeth. कि अगर आपने teeth को lingually move करने हैं तो उसके लिए हम लेबियल बोज यूज कर रहे थे। फिंगर स्प्रिंग्स जो हम यूज करते हैं वो दो पर्पस के लिए करते हैं, टू मूव द टीथ मीजियो डिस्टली और टू प्रोक्लाइन द टीथ। अगर टीथ को हमने लेबियली मूव करने हैं तो हम फिंगर स्प्रिंग आगे आएगा जेड स्प्रिंग वो हम यूज कर सकते हैं, और फॉर द मीजियो डिस्टल रूट मूवमेंट अगर आप यहाँ देखें तो जो फिंगर स्प्रिंग है इसकी पोजीशन यहाँ पे है, तो डेफिनेटली ये प्रेशर जब अप्लाई करेगी इस डायरेक्शन में तो टीथ को मूव करेगी मीजियो डिस्टली।
parts of the finger spring are the active arm. This is an active arm. This is a coil which is used for activation of the appliance, and then the retentive arm. ये basically retentive arm है जो कि acrylic के अंदर यहाँ पे fix होती है. Then cantilever spring constructed of 0.5 mm wire. It is used to proclaim the incisors. ठीक है. तो फिंगर स्प्रिंग एंड जो कैंटिलीवर स्प्रिंग्स होते हैं उसके ये फंक्शन होंगे, या तो टीथ को प्रोक्लाइन करेगी या मीडियो डिस्टली मूव करेगी. मतलब टाइप्स ऑफ द कैंटिलीवर स्प्रिंग इज द सिंगल कैंटिलीवर, डबल कैंटिलीवर जिसको जेड स्प्रिंग भी कहते हैं या क्रैंक स्प्रिंग कहते हैं. सिंगल कैंटिलीवर स्प्रिंग एक टीथ को प्रोक्लाइन करना हो. क्रैंक स्प्रिंग क्या होगा, अगेन अगर आप इस दोनों में देखें तो बोथ आर अप्रोक्सीमेटली सेम इन शेप, बट डिफरेंस क्या है, जो वायर की साइज है, लेंथ है, वो इसमें क्रैंक स्प्रिंग में ज्यादा है. अगेन इफ वी नीड मैक्सिमम, अगर हमें मूवमेंट ज्यादा चाहिए तो हम क्रैंक स्प्रिंग यूज कर सकते हैं. देन डबल कैंटिलीवर स्प्रिंग आर द जेड स्प्रिंग, अगेन इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रोक्लाइन द टीथ. देन कैनाइन रिट्रैक्टर्स टाइप्स क्या होते हैं, रिवर्स लूप कैनाइन रिट्रैक्टर, बकल कैनाइन रिट्रैक्टर, पैरेटल कैनाइन रिट्रैक्टर एंड यू लूप कैनाइन रिट्रैक्टर. All are constructed of 0.6 mm stainless steel wire except the buccal canine retractor which is made of 0.7 mm stainless steel wire. These are the buccal canine retractors. ठीक है, ये जो टीथ को मूव करेंगे लिंगुअल साइड पे. मतलब then expansion screws, they are used in the removable appliance to cause the bilateral dental expansion or proclination of anteriors or the distalization of molars. Suppose if we are using expansion screw as an active component rather than the cantilever spring, rather than label both. तो expansion screw हमने जिस पोर्शन की भी मूवमेंट करानी होगी वहां पर जो आपका बेस प्लेट होगी वो सेगमेंटेड होगी. अब जैसे यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने आर्च को ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन करनी है, तो ये प्लेट जो है वो इस डायरेक्शन में ब्रेक हुई होगी. अगर सपोज करने हमने डिस्टलाइजेशन करनी है, मोलर्स को पोस्टीरियरली मूव करना है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस जगह पे कट लगाएंगे, प्लेट में कट लगा के यहाँ पे हम स्क्रू फिट करेंगे अंदर. जब स्क्रू को ओपन करेंगे वो प्रेशर अप्लाई करेगा और आपका मोलर जो है वो डिस्टली मूव करेगा. एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रोक्लिनेशन ऑफ इंटीरियर. अगर सपोज करेंगे दो इंसाइजर से इसकी हमने मूवमेंट करानी है, तो यहाँ पे इस तरह कट लगाएंगे हम, ताकि स्क्रू की डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो टीथ को प्रोक्लाइन करेगा लेबियली. पार्ट्स ऑफ एक्सपेंशन स्क्रूज, इट्स इन सेंट्रल बॉडी, गाइड पिन्स एंड स्क्रूज. ठीक है, ये सेंटर में बेसिकली यहाँ पे स्क्रू होता है. सेंटर में जो है वो आपका यहाँ पे स्क्रू होगा. ये दो इसकी गाइड पिन्स होती हैं यहाँ पे. ठीक है, और ये मेन इसकी सेंट्रल बॉडी होती है. Again, this is an expansion screw for the transverse direction. और यहाँ पर ये देखें expansion screw लगा हुआ है for the distalization of the posterior segment. यहाँ पर जो लगा हुआ है that is for the distalization of the posterior segment. ये एक ही appliance में उन्होंने combine किया है for the correction of the transverse direction as well as the distalization. Transverse direction की correction और distalization के लिए जो है वो एक ही appliance में use किए दोनों. Coffin spring, it is constructed of 1.25 mm stainless steel wire. ये काफी हेवी वायर से बनता है. causes the expansion of the dental arch. usually mixed dentition में ये काफी इफेक्टिव होता है. ठीक है, this is a coffin spring. ये बेसिकली स्प्रिंग बनेगा. तो एक्रेलिक क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ जो रिटेंटिव आर्म है दोनों तरफ, इन रिटेंटिव आर्म को एंगेज करेगा एक्रेलिक. अगर आप यहाँ देखिए तो ये एक्रेलिक सिर्फ इनको एंगेज करेगा ये पोर्शन. ठीक है, ये सिर्फ इस पोर्शन करता है. ये यहाँ पे जो शो कर रहे हैं ये बेसिकली आपका, आप ये कह दें कि ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एक्सेसिव दिखाया. अदरवाइज आइडियली ये इस तरह होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो रिटेंटिव आर्म होगा इनको एंगेज करेगा. और इसको हम एक्टिव कैसे करेंगे, वो तो स्क्रू था, स्क्रू को तो आप ओपन कर रहे थे. इसको क्या करेंगे कि ये जो आपका जो अप्लायंस होगा, जो कॉफिन स्प्रिंग है, कॉफिन स्प्रिंग को आप जो है वो इजीली इस स्प्रिंग को इसको एक्सपेंड करेंगे. ठीक है, 1 mm 2 mm आप इसको एक्सपेंड करेंगे एवरी मंथ, तो डेफिनेटली ये एक्टिव हो जाएगा एंड प्रेशर अप्लाई करेगा. इट विल कॉज द एक्सपेंशन ऑफ द आर्चेस.
Then the retentive component जो clasp होते हैं, most commonly used clasp is the Adams clasp. Adams clasp is also known as the arrowhead clasp, Liverpool clasp or the universal clasp. Most commonly used होता है 0.7 mm की वायर से इसको बनाते हैं. The component of the Adams clasp जो इसके parts हैं, that is in a bridge. ये जो portion होता है इसको कहते हैं bridge. Arrowheads, these are the two arrowheads, right and the left. And then the retentive arm जो कि link palatal surface पे जाएगी and it will engage in the acrylic part. This is the Adams clasp and ये है यहाँ पे ball headed clasp. ठीक है, simple एक जो है वो यहाँ पे ball attach होगा, is also known as the ball headed clasp. ये C clasp है, also known as the circumferential clasp. यहाँ पे ये C clasp है, circumferential clasp इसको कहते हैं, 0.7 mm की वायर से होगा. And for retention in the anterior segment, we can use the south hand clasp, that is 0.7 mm की वायर से again बनता है. But the most commonly used clasp होते हैं, that is the Adams clasp and the C clasp. Base plate can serve the various functions for reinforce the anchorage. Upper anterior bite plane, we can incorporate the anterior bite plane, posterior bite plane जो मैंने शुरू में बताया, for the correction of the deep bite, increased overbite अगर हो, for the correction of the open bite, full coverage bite plane for the intrusion of the all the teeth, and lower anterior inclined plane for the correction of class 3 malocclusion. Yeah, आपका base plate. Now the advantages of the removable appliances क्या होते हैं? Removable appliances, they are the cheap, simple to handle. Oral hygiene maintenance is easier with the removable appliance as compared to the fixed appliance. Simple tipping movements can be easily treated with the removable appliance. It takes the least chairside time because easily अगर आप patient है तो आप appliance remove करें and easily with the Adams clasp या with the जो है Adams appliance जो है और with the bird beak plier जो है easily हम इसको appliance को active करके within a minute जो है हम activate कर सकते हैं अंदर. And aesthetically better accepted होता है as the fixed appliances. Disadvantages क्या होता है? Compliance is needed. Suppose if the patient is not cooperative, अगर हम इसको appliance को दे रहे हो for as a habit breaking appliance, and if the patient is not cooperative, then definitely appliance जो है वो effective नहीं होगा. ठीक है. So the effectiveness of the appliance जो है वो depend करती है कि patient जो है वो total duration of appliance कितना bear करता है. ठीक है. So the compliance is very much important in this. It move only few teeth at a time. सिर्फ और सिर्फ एक तो ये है कि with the removable appliances only there will be a tipping movement, and at a time हम few teeth को move कर सकते हैं. Maximum multiple movements and multiple teeth को हम involve नहीं कर सकते. No bodily movement possible. It's limited use in the lower arch. Lower arch में limited use इसलिए होता है because एक तो उसमें जो बेस प्लेट होती है ना वो काफी स्मॉल इन साइज होती है as compared to the upper arch. And the other is that definitely तो जो टंग होती है उसकी because of the continuous movement की वजह से जो है वो वहां पर रिटेंशन का प्रॉब्लम आता है. नंबर 2. नंबर तीसरा क्या होता है कि उसमें कोई भी जो है वो बेस प्लेट की जो साइज होती है वो स्मॉल होने की वजह से हम उसमें ज्यादा अप्लायंसेस इंगेज नहीं कर सकते. Rotations are difficult to treat with the removable appliances. Patient might have difficulty in speech. Only simple cases can be treated with the removable appliance. And after required tipping, if extraction spaces are left, they cannot be closed with the removable appliances. Suppose अगर कोई extraction कर रहे हैं और extraction करके आप spaces को close कर रहे हैं, तो with the removable appliances we cannot achieve the ideal finishing method. For the ideal finishing, definitely again we will have to go for the fixed appliances. So in the removable appliances, एक तो ये है कि ये जो आपका removable appliance का टॉपिक है ये उसमें आपके प्रैक्टिकल कंपोनेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यूज या उसमें जो शॉर्ट एसे में जो उसका क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द रिमूवेबल अप्लायंसेस, what are the advantages and the disadvantages of the removable appliances, and what type of the movements we can achieve with the removable appliances. ये कुछ वाइवा के क्वेश्चंस होते हैं और शॉर्ट एसे के क्वेश्चन होते हैं. एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड देन द कंपोनेंट ऑफ द रिमूवेबल अप्लायंसेस. एक्टिव कंपोनेंट जो है आपका
retentive component and the acrylic base plate, and then आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, रिटेंटिव कौन से होते हैं और बेस प्लेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये यहाँ पे एंड हुआ। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना बेटा? बेटा किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो जी बेटा। सर अगर कोई जो है ना प्रिवेंटिव या इंटरसेप्ट ऑर्थोडोंटिक्स कर रहा हो ना तो सर जी। तो वो तो उसमें ठीक एरप्टिंग फेज में होता है ना सर, जी। रूट मुकम्मल तौर पर जो है ना वो नहीं बनी होती जी, सर। तो जी। इस कंडीशन में सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस हम मतलब कौन सा लेंगे सर, वही लिंक के हिसाब से लेंगे कि नहीं सर, या नहीं करेंगे? नहीं, अब दोबारा पूछिए। अगर सपोज करें कि पेशेंट मिक्स कंडीशन में है सर मतलब इंटरसेप्ट ऑर्थोडोंटिक्स कर रहे हैं ना, या जी। कोई जो है ना वो प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स कर रहे हैं जिसमें बेटा रूट देखिए, जो मुकम्मल तौर पर नहीं प्रिवेंटिव बनी। मैं आप सुन लेना, जो प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स होती है, पहली बात तो प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स में आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स का जो सर सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो दैट इज आपका स्पेस मेंटेनर। स्पेस मेंटेनर। अब यस स्पेस सर। मेंटेनर में हम फोर्स तो अप्लाई नहीं करते ना, वो तो पैसिव अप्लाई जी है। आपने रखा वो हाँ, सिर्फ लेट्स सपोज। स्पेस मेंटेन जी रखने सर। का मतलब, ठीक है। जी नंबर सर। 1। फिर आप आ जाएं इंटरसेप्टिव में। इंटरसेप्टिव में क्या है कि सपोज टूथ की मूवमेंट हुई है और आपने टूथ को डिस्टली यस सर। मूव करना है, ठीक है। मोलर यस सर। मेजलाइज हो गया और मोलर को हमने डिस्टली मूव करना है मतलब। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें हमें रिक्वायर्ड ही टिपिंग मूवमेंट है मतलब, इसमें बॉडीली मूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है मतलब। जब टिपिंग जी सर। मूवमेंट रिक्वायर्ड हो तो इसमें हमें कोई ये परेशानी नहीं होती कि नहीं पेशेंट नहीं का रहा। सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, जी ठीक है। सर, मतलब हम जब बेसिकली बोल्ड मूवमेंट करेंगे ना तो जी, यस सर। जहाँ भी बॉडीली मूवमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी वहां पर सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस और सेंटर ऑफ रोटेशन का बड़ा रोल होता है। जी सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ट्यूसडे को इंशाल्लाह हम बायोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट जो है वो शुरू करेंगे। थैंक यू।